गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट विथ वन अनदर। सो वी हैव यूज one criteria for that we are going to discuss and recall just again. We have taken the one criteria per capita income which we have discussed in the previous class. That's how we are going to, with the help of this, we are going to compare one country with the other country. Now this has also been called as an average income. So this is the one factor through which we that was the country are being compared. And who is going to say that which country is more rich or poor? It has been by getting the data. The World Bank that make and figure, and through that figure it has been compared. So we will have discussed already, just we will see what was the figure which was been given through the World Bank that report in 2017. So according to 2017, the World Bank has been given that the country who is earning per annum, per person per annum, that is per person per annum. So it is PPP, per annum. Okay. So per person per annum $1,256. If the person is investing on him, so that person, that means the country is being considered as rich country. And those who are been consuming below that is 955 or less than, it has been called as low income countries. Now India has been categorized in between these two, so it has been called as low middle income countries. So this is the per capita income in 2017. So India has been per annum, the figure is 1820 per annum. So this is the one criteria, but this is the one only. Apart from this, there are other also. So we will again have a look about what is an average income and how we are going to calculate, or is this average or per capita income is correct criteria, or we can say the good criteria. With this we can conclude what is that. Now we have already, in the previous class we have already done that. Again, with the help of your examples with your book, take that a country A and B. In the country A, five people are living, and B also 5. Now what is it that a country A person, first person, he is earning, he or she, whoever, 9,500, then 10,500, 9,800, fourth one 10,000, then 10,200. It means all of them, they are in average. So the total will be around 50. Over here, see that first 500, second 500, third 500, fourth 500, and the fifth one is 48,000. The fifth one is alone is earning. So what we have to, how we are going to get the per capita? So per capita is that we have to add the total. So total will be 48,000, 49, 50,000. Okay. So it will be 50,000. So 50,000 will be divided into the 5. To 50,000 total earning, 50,000 population, 5. It will be divided by. So what we will get the amount. So what we just do it, calculate it, cut it. It will be easily that it will be 10,000 per person. Easily 10,000 per person. So the 10,000 is the per capita income of a person. Per single person,
that is the average income of that country, or per capita. It can be called, but in the economics it is being called as per capita income. So the per capita income or the average income, okay, it will be 10,000 per head. Though they are not earning, but it will be divided. So it is not a good one to get because it is not clearly give the good result of that. The income of one person is rich and the other is not. Okay, so this is what. So apart from this, see over here also, this country example, they have made the and they are using. There is no rich and no poor, all are equal. Over here, the one is using because he is a rich person, though they have made it. Who has made the chair? They have made the chair, but he is using because he is a rich person. So this is been, though it is taken as a criteria for comparing the one country with the other country, but although it's not the one only, apart from there were others also. Let us see what are the other apart from income, other criteria. Take the example over here. First of all, again we will compare one state to the other state. Per capita income of Haryana, it has been 1,80,000, Kerala 1,063, and in Bihar 34,000. So again, how we have get that per capita income? Total earning, okay, earning. How many person who is working? Total earning, then total population. टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट पर कैपिटा इनकम, पीसीआर, दैट इज पर कैपिटा इनकम. ओके, so this is Haryana, they have got 1,80,000, Kerala 1,63,000, Bihar 34. It means in the Bihar working populations are not good. So this is the per capita. Based on per capita income, we have seen the status of per capita income. Haryana is the in one place. Second is Kerala. Now apart from there, we will move ahead on that not only the per capita and that is the income is important, as we have seen that now per capita income. तो इनकम जिस तरह से हमने आगे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, दैट इनकम कॉल एज व्हाट वी आर अर्निंग फ्रॉम मनी, कॉल एज मटेरियलिस्टिक, and which we cannot buy from money is called as non-material. Remember in that first or second lecture we have already discussed in this chapter. Okay, so that was the income, and the other criteria which we will see, that will be health, and literacy is also important. So apart from that, health is also important. हेल्दी, और हेल्दी पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहला आ जाएगा हेल्थ, फिर दूसरा आ जाएगा लिटरेसी रेट, दैट वाज एजुकेशंस. एजुकेशंस कितना अच्छा है उस स्टेट का, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो. सो दिस इज ऑल्सो द अदर क्राइटेरिया. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंपेयर वन स्टेट और वन कंट्री. अब इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, अगर हरियाणा इनकम में फर्स्ट था, we have seen Haryana in the first place in the income, but in the mortality, infant mortality rate, what is it? Infant mortality rate. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस मिल जाएगा. दैट वाज द चिल्ड्रन हु डाई बिलो 1 years ड्यू टू अंडर नरिश, जो होते जिनको खाना नहीं मिल पाता, बच्चे सही से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते, तो दैट वाज द प्रोपोर्शंस लाइफ. तो जो मर जाते हैं पर 1000 लाइफ की, कितने बच्चे, मेजरिंग किसे करते हैं? लाइफ 1000 बच्चों के थ्रू. तो इसी तरह से मोर्टेलिटी रेट जो है हरियाणा का देखा जाए ज़्यादा है, 30 है. वहीं पर केरल में 10 है और वहाँ पे बिहार में ज़्यादा है. तो फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केरल इज़ नंबर 1, मतलब इन गुड पोजीशन, कि वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है कम, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा मरते नहीं है, उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है. ज़्यादा किसका है? बिहार का. उसके बाद किसका है? हरियाणा. केरल पीछे, इसका मतलब वो अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मतलब हेल्थ में वो अच्छा है. एजुकेशन में अगर हम जाते हैं, एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन में हरियाणा देखो यहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है. दैट वाज द फिगर, इसमें 17 का था, ये 2011 का फिगर बताया गया है. तो यहाँ हरियाणा में 82 बता रहा है, वहीं पे केरल में 94 है. तो ज़्यादा किसका है?
केरल का 94 है, वहीं पर ही बिहार is 62, तो बिहार बहुत पीछे रह गया एजुकेशन के अंदर। फिर अगर हम अटेंडेंस देखते हैं कि नेट अटेंडेंस कितने बच्चे अटेंड करते हैं, तो ये फिगर है 2013 एंड 14 में, तो यहाँ पे हरियाणा 61 है, वहीं पे केरल 83 अटेंडेंस है, कि वहाँ पे 83% जो बच्चे अटेंड करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इनकम में भले ही केरल पीछे था, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में वो आगे निकल गया और हरियाणा पीछे रह गया। तो इसीलिए हमेशा इनकम ही नहीं, बल्कि अपार्ट फ्रॉम इनकम हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था, मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन आ गया। लिटरेसी रेट किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दैट आवर गवर्नमेंट स्टेटस कि द पर्सन, द चाइल्ड और एनीवन बिलो 7, अबव 7 जो होते हैं, that they can read or write the same language, read and write, बहुत ज़रूरी है कि जो रीड करे वो राइट होना चाहिए। द सेम लैंग्वेज इज बिन कॉल्ड एज लिटरेट। तो इसी तरह लिटरेसी रेट प्रोपोर्शंस उसके अकॉर्डिंग। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, जो एज ग्रुप है 14 से 15 ईयर्स वो अटेंड करते हैं और वो रेगुलर अटेंड करते हैं, तो इस तरह से उसको हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकम्स के अलावा भी इम्पॉर्टेंट ये था कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी रहेंगे तो हम अच्छा करेंगे, और एजुकेशंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमने देखा कि सबसे आगे केरल है, फिर बाद में हरियाणा का नंबर आता है। वहीं पर इनकम में हमने देखा था कि हरियाणा आगे है और बाकी केरल उसके पीछे था सेकंड में ना। अब यहाँ पे वही चीज़ जो हमने डिस्कस किया कि आपके पास पॉकेट में पैसे हैं, लेकिन फिर भी अब भले वो मटेरियल जितनी चीज़ें आप परचेस कर सकते हो, लेकिन नॉन मटेरियल चीज़ें आप परचेस नहीं कर सकते। जैसे एनवायरनमेंट फ्री, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स हम अपने कैसे इसको परचेस कर सकते हैं? वी हैव टू मेक इट, हमें खुद उसको करना पड़ेगा। हम उसे अडल्ट्रेशन से नहीं बच सकते, मिलावट, पैसे है लेकिन फिर भी हमें अगर वो नकली दवाई खानी पड़ रही है, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिर्फ इनकम ही नहीं, इनकम के साथ दूसरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसके थ्रू हम आगे जो है बढ़ सकते, कोई भी कंट्री आगे जा सकती है। तो इसी तरह से ये दो अलग क्राइटेरिया आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, ये वापस एजुकेशन लिटरेसी रेट बताया जा रहा है, जिसके अंदर एक्टिविटी है, उसके अंदर फिल द ब्लैंक्स वर्क करने के लिए बताया गया। तो आप इसको इजीली कर लोगे क्योंकि आंसर्स जो है ऊपर ही इसके दिए हुए हैं ना। नेक्स्ट आता है जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे BMI। ये आपने सुना होगा, BMI मोस्टली जो है डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये होता है क्यों, इससे पता क्या चलता है कि हमें फूड, जिस तरह से भी हमने डिस्कस किया था, मैल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बच्चे क्यों मर गए, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट नरिश्ड, उनको सही से पालन पोषण और जो मिलना चाहिए था खाना वो नहीं मिल पाया। सो इसी तरह से बॉडी मास इंडेक्स बहुत होता है, बहुत ज़रूरी। और जो हमारे न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं बॉडी की वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और वो कैलकुलेट करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज बिन कन्वर्ट मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, उसकी तरह से फिर उसको स्क्वायर में लिया जाता है, तो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो वो जब निकलता है तो दैट वॉज बिन कॉल्ड BMI। तो हमें उतना ही फूड लेना चाहिए, ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, ऑब्सेसिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम लेंगे तो अंडर नरिश हो जाएंगे, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अकॉर्डिंग टू BMI हमारे एज के अकॉर्डिंग, सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए, फूड लेना चाहिए ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी, हमने देखा कि वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इनकम के अलावा भी इनएडिक्वेट इनकम्स होने पर भी बहुत कुछ हमारे पास नहीं है, हम नहीं पा सकते। सो वी कैन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया। इसीलिए इनकम पहले तो बहुत सबसे पहले है कि हम इनकम के थ्रू ही हम दूसरे कंट्री को, दूसरे स्टेट को कंपेयर करते हैं, ये पहला है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों को रखा गया है कंपेयर करने के लिए। तो इसके लिए देयर कुड बी ए लॉन्ग लाइफ लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया, जो भले हमें लगता है यूज़फुल नहीं, लेकिन वो यूज़फुल होता है।
सो वी नीड इट स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अगर हम बाकी चीज़ों को देखें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो तो लेना बहुत ज़रूरी है. और वो क्या है? वो है हमारा हेल्थ और एजुकेशन. क्योंकि अदर चीज़ें हमें लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लिस्ट बन जाएगा, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारा हेल्थ और एजुकेशन है. तो ये इंडिकेटर्स जो हमें एग्जाम्पल देता है केरल और हरियाणा कि इनकम में भले वो हरियाणा कितना ज़्यादा आगे हैं, बट केरल वापस हेल्थ में एंड एजुकेशन में उससे बहुत आगे है. सो ओवर द पास्ट डिकेड्स एंड सो ऑन, हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर्स को भी वाइडली एक्सेप्ट किया गया है एज अ मेजर. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इन जो रिपोर्ट्स बनते हैं UNDPI, उन्होंने कंपेयर किया एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल्स, उसकी बाकी एजुकेशन कैसी है, सबकी लेवल्स कैसी है, स्टेटस, हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर कैपिटा इनकम्स. उसके बाद ही वो रिपोर्ट डाटा तैयार किया जाता है इस तरह से. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग to look at certain relevant data regarding India and its neighboring from Human Development Index जो बनाया था 2019 में. और ये देखो उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है आपको यहाँ पर. अब श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है देखो 11,326 है पर पर्सन पर, ये पर पर्सन पर मंथ पर एनम के अकॉर्डिंग और मंथ. तो यहाँ पे मंथ होगा. अब यहाँ पे मंथ है, एनम में अलग अलग लिया जाता है. तो ये ग्रॉस नेशनल इनकम की वो कितना इनकम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम निकाला गया है. इंडिया 6,353. फिर म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट रेट मतलब कि लाइफ स्पैन वो कितने बर्थ के समय से कितना लंबे समय वो कितने लंबे तक वो जीवित रहता है, हेल्दी रहता है. तो कितना है यहाँ पे? श्रीलंका 75, इंडिया में 68 है ना. स्कूलिंग मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो एज 25 तक मोस्टली, तो वो 10. अगेन इंडिया 6.4. HRD रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो श्रीलंका 76, इंडिया 130. तो जब ये बनाया गया था तब कितने कंट्रीज को लिया गया था? 189 कंट्रीज को लिया गया था. उसके अंदर इंडिया इज बिन रैंकिंग इन 130. पर कैपिटल डॉलर में हमेशा किया जाता है डॉलर, बिकॉज इट विल बी कंपेयर नहीं हाईएस्ट नहीं लोएस्ट. तो इसको इस तरह से ताकि सभी कंट्रीज में इसके कंपेयर किया जाए इजीली और सही निकले इसके लिए. तो ये है उसके UNDP के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलप इंडेक्स बनाया गया. तो इसमें से हमें पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, दैट वाज द कि आप हेल्दी अच्छा रहोगे तो ये आप हेल्दी रहेंगे तो हम अच्छे जिंदा रहें, लंबी जो है लाइफ लाइन हमारी ज़्यादा रहेगी. तो ये बनाया गया है. तो अब यहाँ पे देखा जाए कि भले ही श्रीलंका छोटा है देश, हमसे छोटा है, पॉपुलेशन में भी छोटा है वो, लेकिन हमसे बाकी चीज़ों में आ गया. श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट देखा गया. एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स, हम उनके एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज सब में, लेकिन हम रैंक में पीछे है. तो जिस तरह से नेपाल भी, बांग्लादेश उसका पर कैपिटा इनकम लो है इंडिया से, लेकिन फिर भी येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसीज इसमें. तो ये चीज़ें अलग अलग है, इसलिए क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम के साथ हेल्थ को, इसके लिए ही हेल्थ को रखा गया है कि इनकम के साथ साथ हेल्थ, तो इसके कारण हेल्थ एंड एजुकेशन को डाला गया है. तो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन. अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने 9 में ही पढ़ा था. व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो डेफिनेशन हम लोगों ने 9th में, और अभी आपने रिसोर्स चैप्टर्स में ज्योग्राफी में डिस्कस किया है. दैट रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स. तो रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग and which we have to use very judiciously, appropriately. The important is very judiciously without disturbing the environment, and it should be used in future also. उसे हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी, ताकि हम सस्टेन कर उसको बचा रहे. तो बहुत ज़रूरी है कि उसे हम जुडिशियसली यूज़ करें विदाउट
hampering or damaging the environment, and it should be used in future. So that is been called as sustainable resource or sustainable development. अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो ग्राउंड वाटर इन इंडिया. आजकल ग्राउंड वाटर जो है हमारा बहुत ज़्यादा नीचे चला गया. क्यों? अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स का आ गया रिपोर्ट, टोटली कहा गया कि वो बहुत ही नीचे हो गया विद इन दिस लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर, 20 सालों के अंदर 1/3 ऑफ द कंट्री जो है देखा जा रहा है ग्राउंड वाटर रिजर्वर्स खत्म, एकदम नीचे चला गया है. कारण बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग इट, कंटिन्यूसली यूज करें इसको, एक्सप्लॉइट करें, बर्बाद भी करें. एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है. देखा जाए तो मोस्टली ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ होता है एग्रीकल्चर्स के लिए, और ये मोस्टली पंजाब, हरियाणा, यूपी इस तरह से एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इसके कारण क्या हो गया कि वो एकदम उसका लेवल जो है नीचे चला गया. दो वाटर उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं. अभी हमने ये भी अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ज्योग्राफी में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स के. रिन्यूएबल जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं. ये रिन्यू कैसे करेंगे? इसको रेन वाटर से. लेकिन हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ करने लगे हैं कि इसका बैलेंस होना बहुत मुश्किल हो रहा है. क्योंकि हम यूज़ क्या करें, वी आर यूजिंग मोर एंड मोर, हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए वो बैलेंस अंडरग्राउंड वाटर जो है ये ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. सो दिस रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड. सो इसके लिए हमें इससे थोड़ा रिन्यूअल है, लेकिन इसको अगर हम लोग सही से करेंगे तो मे बी अंडरग्राउंड वाटर फ्यूचर में धीरे धीरे लेवल में आ जाए. जो हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, जो फिक्स्ड है, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा. वी ऑल नो फॉसिल फ्यूल्स जो एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो एग्जॉस्टेबल है. जैसे पेट्रोलियम, यहाँ पे क्रूड्स दिया हुआ है, क्रूड्स ऑयल दैट वाज पेट्रोलियम जो निकालते हैं वो क्रूड्स रहता है, उसको फिर हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, उससे बाय प्रोडक्ट्स बहुत चीज़ें बनती है, तो वो है एग्जॉस्टेबल. तो ये वापस से क्रूड्स ऑयल रिजर्व के वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ रिजर्व कितने हैं ये सारा दिया गया. 1000 मिलियंस बैरल्स इसके अकॉर्डिंग नंबर्स दिए गए हैं. तो ये चीज़ें मोस्टली हम लोग ने चैप्टर 1 में किया हुआ था ज्योग्राफी के इसके लिए. तो वापस एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहेंगे? द डेवलपमेंट विच शुड बी डन in a judicious manners and without disturbing the nature or polluting the nature, and it should be used in the future also. So that has been called as sustainable development. तो ये बहुत ज़रूरी है, आज हमें इसी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, सो दैट हमारा जो डेवलपमेंट आज जो हो रहा है वो आगे भी हो और वो होता रहे विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट. तो हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग मूव करेंगे एक नया सब्जेक्ट में, एक नए चैप्टर्स में. ओके, टिल देन टेक केयर.